हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम किए थे और मैंने आपको होमवर्क के लिए भी जो एक न्यूमेरिकल दिया, आई होप आपने वो सॉल्व किया होगा। ठीक है, सो इन दिस कॉन्सेप्ट समटाइम्स द एग्जामिनर विल बी आस्किंग यू दैट द टू चार्जेस आर देयर। इन दोनों चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पे मैं किसी चार्ज को रखूँ तो उस पर फोर्स लगे ही ना, यानी कि इन दोनों चार्जेस की वजह से लगने वाली फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और उस पॉइंट पर फोर्स ना लगे, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज नल पॉइंट और द न्यूट्रल पॉइंट। You will be familiar with these topics in a very simplified way after going through this particular video or the particular lecture. Okay, so in this I'm giving you the tactics and the tricks to solve this type of questions. You will never miss this question or this type of question. So let me introduce with the concept here. When the two charges are kept at a distance r, and now the task is to find a point where the point is where the force is 0 and the resultant force is 0. Okay, and this is known as the equilibrium of the test charge. Equilibrium of test charge does mean the test charge is that charge over which you are calculating the force just because of these two charges, and the equilibrium does mean that when these two charges are exerting the force on the third particle which you are considering the test charge, at that test charge the net force is 0. That means these forces are cancelling out each other. Okay, now the important point is when you calculate the neutral point or the null point. Okay, so neutral point or the null point does mean this is depending upon how the big charges are there, what is the magnitude of the charges, right, and what is the nature of the charges, whether they are alike or unlike. And these four concepts I have written before you just to explain, just to save the time. See, when two charges are like, suppose this is plus q1, this is plus q2, and in this case it is also giving you that these two charges are of the same magnitude, that is plus q. Definitely when the test charge, the third charge, when you keep this, आपको एक ऐसी पोजीशन निकालनी है जहां पर आपका जो फोर्स है, नेट फोर्स है, वो 0 आए। तो कहाँ आएगा? डेफिनेटली इट विल बी द मिड पॉइंट। ये समझ में आता है कि ये जो चार्ज है इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा उस साइड, और ये वाला जो फोर्स है, जो चार्ज है, ये फोर्स लगाएगा उस तरफ, है ना। सो दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर and the net force will be 0. So in that case, when the two charges are like and of the equal magnitude, definitely your midpoint is the null point. That is clear. The first concept it is. The second point is written over there. This is see, if q1 and q2 are unlike, means they are not having the same nature, that is minus q1 and one is plus q2. Okay, minus and plus minus, they are not having the plus and minus. So this is the case. At that point, that null point is always lying outside the line between the two charges. It means if you are taking the two charges like this, that will never lie on that line. This will lie on that line but outside the charges. और इसमें ध्यान रखना है, जो छोटा चार्ज होगा उसकी तरफ लाई करेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, नल पॉइंट हमेशा छोटे तरफ की तरफ लाई करता है। ठीक है, देन थर्ड इज q1 q2 आर लाइक। नाउ they are like, that means they are having plus or minus, but now the magnitudes are not same. Again the condition will become this one, q1 and q2. Suppose q1 is greater than q2, then null point will be nearer to the स्मॉल चार्ज। हमेशा छोटे चार्ज की तरफ नल पॉइंट लाई करता है। प्लीज डू रिमेंबर दिस। ओके, एंड इफ q1 and q2 are unlike and they are having the equal magnitude, it means unlike does mean one is minus q1. Just you take an example. Suppose this is minus q1 and minus this is plus q2. If I put
a test charge here, and I'm supposing that this charge will not feel any type of force, the net resultant force over this particle is 0. So that does mean that the test positive charge, ये Q2 जो है ये इस पे रिपल्सन लगाएगा और ये जो नेगेटिव है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स इधर आ गई और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगी तो कभी 0 दे ही नहीं सकती। तो इसका मतलब जब अनलाइक होते हैं और मैग्नीट्यूड सेम होता है तो नल पॉइंट हमें मिलता ही नहीं। Okay, so these are the 4 concepts, and regarding these, just let me start with numericals, 3 or 4 numericals, and just I'm giving you a trick, a very beautiful trick there, okay, to deal with such type of questions. And the first question is, suppose the Q1 and Q2 are there and the condition is given to you that Q1 is greater than Q2, and in that case you are supposed to find out the null point between the charges, and you know that this null point is lying between the charges. मैंने आपको कहा था they are like and they are like here. In that case, the third case is they are not having the same magnitude. If they are having the same magnitude, then there is no need to calculate, it is the midpoint. Okay, but now the condition is somewhat different, and this slight diversion from the standard problem, it is that is Q1 is not equal to Q2, Q1 is greater than Q2 is given to you. Okay, fine. So now the forces, you see, suppose मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, जब ऐसा होता है तो जो छोटा फोर्स होता है उसकी तरफ आपका जो नल पॉइंट है वो लाई करता है। सपोज दिस इज अ नल पॉइंट एंड दिस नल पॉइंट इज सपोज x की दूरी पर है, किससे, आपके Q2 से, और तो डेफिनेटली इट विल बी r माइनस एक्स अवे फ्रॉम द Q1. ओके, सो ये हमारा Q0 टेस्ट चार्ज है. Q0 is the test charge, then definitely you see when you calculate it, the force equilibrium does mean for the equilibrium, okay, for the equilibrium इसकी वजह से लगने वाली फोर्स और इसकी वजह से लगने वाली फोर्स को हमें बराबर करना है, यानी कि अगर ये इस पे इधर लगा रहा है और ये इस पे इधर लगा रहा है तो दोनों कैंसिल आउट होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में, एंड दैट इज आप निकालेंगे. सो Q नॉट, दिस इज Q1, सॉरी, सो दिस इज r माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू Q naught divided by x square. Okay, fine. So from this you can calculate x and r minus x. Okay, so after solving this, your x will become root Q2 by root Q1 minus root Q2 into r. Okay, so this will r, clear? And in the similar way, when you calculate r minus x, it will become root Q1 divided by root Q1 minus just wait, this is plus Q1 plus Q2, okay, and this is root 2 Q1 plus Q2. Is it okay? So these are the results. What it means, यहाँ से आप एक ट्रिक लिख सकते हैं, और वो ट्रिक क्या है, आपने क्या कहा है, आपने बोला है कि जो छोटा चार्ज है छोटे चार्ज की तरफ नल पॉइंट लाई करेगा और नल पॉइंट छोटे चार्ज की तरफ लाई करेगा, और उसको आपने x माना है. तो आप देखो, अभी मैंने इसमें क्या लिखा, अभी मैंने इसमें जो लिखा है, ये अभी जो नल पॉइंट है ये दोनों चार्जेस के बीच में लाई कर रहा है. ओके, द कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ सी दिस x इज, आपने ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, d is the distance of your null point from the concerned charge. Okay, d equals to q star लिखता हूं मैं यहाँ पे, divided by q big plus minus q small. This is the trick. आपको इतना बड़ा कैलकुलेट करने की बार बार जरूरत नहीं है. यह बहुत अच्छी हम जो ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं
इससे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कई बार काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो टाइम बचाने के लिए हम इसको ऐसा करते हैं। अब इसको समझिए है क्या। अभी ये वो गैप है जिससे गैप ऑफ चार्ज फ्रॉम नल पॉइंट, और कौन सा चार्ज है, क्यू स्टार। जो भी चार्ज आप लें, जैसे अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में Q2 लिया, Q2 से नल पॉइंट की दूरी x है, तो आपने यहाँ पे x लिया, तो यहाँ पे जिससे दूरी लेंगे ऊपर वही आएगा Q2, दैट इज Q स्टार से दूरी ले रहे हैं तो Q स्टार आया, और यहाँ पे इनटू में R भी लिखना है। ओके, सो जिस चार्ज से दूरी लेंगे ऊपर वो लिखना है, बटे में नीचे बड़े वाला का रूट प्लस माइनस एंड Q स्मॉल, व्हाट इट इज, प्लस माइनस, प्लस व्हेन null point is between charges and minus sign when your null point is outside the charges, when null point is outside the charges. Fine. Okay, so now see, when null is between the charges, null point is between the charges, you take it plus, and when you take the null point outside the charges, that means you are taking the minus sign. Let me take the another example to just verify this trick. Okay, see, this is the charge, plus Q1 and minus Q2, they are placed at R, and Q2 is less than Q1, it is given to you. Okay, now definitely they are not the same charges, they are not the like charges, and if they are not the like charges and the magnitude is always this is not equal, is also not equal, then definitely your null point will be lying outside the charges, and the charge किसके पास लाई करेगा, वो null point जो है वो small charge के पास लाई करेगा. Suppose Q1 is greater than Q2, that means Q2 is smaller, and that's why suppose the null point is here, and this is X, this is your null point, and Q naught is there, this is null point. तो हमने अपनी जो इमेजिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है वो लगा लिया कि जो हमारा नल पॉइंट है वो छोटे चार्ज की तरफ लाई करेगा, और हमने बना लिया वो आउटसाइड है. ओके, बना लिया. अब इसमें अगर आप फोर्स निकालेंगे तो आप फोर्स निकालेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए. फॉर इक्विलिब्रियम आप क्या करेंगे, जो F1 है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड F2 के बराबर होना चाहिए. दैट मीन्स जो ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, और जो ये फोर्स लगाएगा Q नॉट के ऊपर. तो अगर यहाँ आप फोर्स निकालें F1, दैट विल बी K Q1 Q नॉट डिवाइडेड बाय दिस गैप इज R प्लस X now. So this is R plus X whole square, and that should be equal to K Q2 Q naught divided by X square. Is it okay? Fine. So this is the condition. आप ऐसे लगाते हैं, फिर आप इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपके आंसर्स आते हैं. तो इसके बाद हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से सी सो आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके आंसर निकालेंगे. तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, जो K Q1 Q2 नॉट जो है, क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, लाइक दिस. ओके, एंड if I write this as root 2 Q1 whole square R plus X whole square, and this is root 2 Q2 divided by this is whole square and this is X square, so that will become root Q1 divided by R plus X equals to root 2 Q2 divided by X. तो यहाँ से आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल बिकम X रूट 2 Q1 X रूट दैट विल बी Q1 रूट Q1. ओके, एंड दैट इज X रूट Q1 एंड रूट 2 Q2, दिस इज R प्लस X रूट Q2. ओके, दैट इज R रूट Q2 प्लस X रूट Q2
fine, and this is x root q1. Is it okay? And you see this x is there, you can have these values closer to each other, that's why this will x root q1 minus q2, and this is r root q2. Fine, and if I find x is this root q2 into r divided by yes root q1 माइनस रूट q2, क्या मैंने यही रिजल्ट नहीं लिखा था आपके सामने? आप देखिए अभी आप इसको कैलकुलेटिव बना रहे हैं, मैंने आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन ये है कि मैं आपको एक आइडिया भी दूं और उसको वेरीफाई भी करवाऊं कि ये सही है या गलत है। तो अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था d, यानी कि अब d कौन था? x। आप अगर x ना लेके r प्लस एक्स ले लेते कोई बात नहीं, बस किससे दूरी ले रहे हैं, ये d किससे दूरी है, वो है q स्टार, इसका लेना आपको रूट, साथ में r जो चार्ज बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ रूट q बिगर, जो बिगर चार्ज है वो कौन है, ये q1 था यहाँ पे, तो हमने q1 लिखा, और ये आउटसाइड है दैट्स वाई ये माइनस लिखा, और q रूट q स्मॉल। तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। और अगर मुझे यहाँ पे सपोज r प्लस एक्स लिखना होता तो डेफिनेटली यहाँ ऊपर कौन आता, q1 आता, क्योंकि r प्लस एक्स नल पॉइंट से किसकी दूरी है, 1 की, q1 की, सो दैट इज रूट q1 एंड दैट इज रूट q स्मॉल, दैट इज सॉरी बिग, दिस इज q1 माइनस रूट q2 इनटू में r, सो दिस इज योर आंसर। Okay, so the general formula is plus minus. If the null point is between the charges, it is plus, and when the null point is outside the charges, that does mean that it is minus. And please do remember this d is the distance of the charge from where you are calculating the distance from the null point. If it is q1, then you take it r plus x and the charge will be q1. If it is x, then the charge will be q2, and the denominator is always same, that is root q big plus minus root q small, and provided the condition the null point lying between the charges it is plus and outside the charges it is minus. So on the behalf of this, please do this question. अभी आपको null point की पोजीशन बतानी है, तो they are like charges, charge will be in between the charges 4q and 25q, okay, and when 4q and 25q are there, they are like charges, and you know that the charge will lie, the null point will lie between the charges. और आपको ये भी मालूम है जो null point है वो हमेशा छोटे चार्ज की तरफ लाई करेगा, तो आप कहीं पे भी मान लो, सपोज छोटा चार्ज कौन है, ये चार्ज है, तो आपने यहाँ पे null point मान लिया, सपोज इट इज x की दूरी पे आपने इसको कैलकुलेट किया, मान लिया इसको, ओके। देन आफ्टर आपको पता है ये जो गैप है, ये गैप क्या ये 14 मीटर का गैप नहीं है, अगर ये 2 मीटर की दूरी पे है, ये 16 मीटर की दूरी है फ्रॉम द ओरिजिन, सो दैट विल बी 16 माइनस 2 करेंगे, 16 माइनस 2 दैट विल बी 14 मीटर, एंड इफ दिस इज x देन इट बिकम्स 14 माइनस x। अब देखिए आपको x निकालना है, यानी कि नल पॉइंट की दूरी निकालनी है, किससे, 4q से, सो x किसकी दूरी है, 4q की, तो ऊपर लेंगे रूट 4q, हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, q स्टार रूट इंटू आर डिवाइडेड बाई q बिग प्लस माइनस q स्मॉल। आपको दोबारा से इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन बनाने की जरूरत है ही नहीं, आप टाइम खराब करेंगे, आप लिखिए 4q जिससे दूरी, x किसकी दूरी है, 4q की दूरी है, डिवाइडेड बाय इंटू में यहाँ क्या रहेगा, r रहेगा, r कौन है, बिटवीन द चार्जेस कितना है, 14 मीटर, फाइन, रूट 4q डिवाइडेड बाय बड़ा चार्ज कौन है, 25q, फाइन, माइनस या प्लस, plus because the null point is in between, that's why it is plus, and that is 4q। तो q तो कैंसिल हो जाने हैं, तो ऊपर क्या बनेगा, 2 into 14 divided by 25, that is 5 and this is 2, so this is 14 4 मीटर, क्या आएगा ये 4 मीटर आएगा, क्योंकि 7 से 2 पे, एंड दिस इज 4 मीटर, तो ये जो x है ये 7 मीटर है, 7 मीटर है, ओके। Is it clear? Now the position of null point is being asked there, so this is 4 it is 4 meter, 4 meter, okay, so 4 meter is answer। और अगर आपको 25q से निकालना है then it is easy because 14 minus 4 that is 10,
सो जैसा भी ऑप्शन हो, जिससे भी दूरी पूछे कि 25 क्यू वाले से दूरी बताइए नल पॉइंट की कहाँ है, तो 10 मीटर है, छोटे से बताइए तो 4 मीटर है। ओके, और अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से कितनी होगी, ये 4 मीटर है, तो यहाँ तक ये 2 था, तो 2 + 4 यानी कि 6 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि वो कहाँ से पोजीशन पूछ रहा है, ओरिजिन से पूछ रहा है, छोटे वाले से पूछ रहा है, बड़े वाले से पूछ रहा है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। द लास्ट क्वेश्चन इज, द कंडीशन इज लाइक दिस, just I'm giving you the different approaches and different aspects of the same question. Just I'm just putting this 4q on the negative axis, and this is x equals to 7 meter. So first of all you have to calculate the distance between them. What it is 8 meter. Okay, the distance is 8 meter. How would you calculate that? 7 minus 1, that is 7 + 1, that is 8 meter. So this is 8 meter now. So हमें r तो मिल गया है ना। अभी आपको निकालना है कि थर्ड पार्टिकल। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि यार ये दोनों लाइक तो नहीं है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, तो डेफिनेटली इनका जो नल पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, वो आउटसाइड लाई करेगा। ओके, और अगर आउटसाइड लाई करेगा तो कहाँ, किसके पास करेगा, छोटे चार्ज के पास, यानी कि 4q के पास हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जब आप 4q के पास में अपना नल पॉइंट लेंगे तो आप इसको कैसे करेंगे, आपको 4q से निकालना है। मुझे नल पॉइंट मुझे नहीं मालूम कहाँ है, दैट इज सपोज इट इज x। ओके, एंड तो आपको d निकालना है, सपोज इट इज x। लेट मी टेक द अनदर पेन। ओके, सी नाउ अगर आप फ्रॉम 9q वाले से निकालना चाहते हैं, 9q वाले से, दिस इज 9q निकालेंगे तो यहाँ पे 9q लेना पड़ेगा, 9q लेना पड़ेगा, इनटू r कितना है 8 डिवाइडेड बाय 9q बड़े वाला है, माइनस क्योंकि आउटसाइड है, दैट इज यहाँ कितना आएगा 4q दिया हुआ है, तो क्यों कैंसिल हो जाएंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी 3 - 2 1, ऊपर क्या बनेगा 3, दिस इज 24 मीटर। यानी कि इससे 24 मीटर की दूरी यहाँ तक, यहाँ कोई नल पॉइंट है मान लो, है ना, ये नल पॉइंट था, तो यहाँ तक की दूरी जो आ गई आपकी वो 24 मीटर आ गई, है ना। लेकिन ये 24 मीटर इससे आई है, लेकिन मुझे अगर मान लीजिए इस 4q वाले से निकालनी है या ओरिजिन से निकालनी है, तो क्या पूछेगा, ओरिजिन से कितना होगा, ये 7 माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम ओरिजिन इट इज नल पॉइंट इज 24 - 7, दैट इज 17 मीटर। ओके, और अगर आपको 4q से निकालना है तो 4q के लिए फिर क्या करेंगे, आप ऊपर 4q ले लेंगे, इंटू 8 डिवाइडेड बाय, अगेन दिस विल बिकम 1 एंड ये q तो कैंसिल ही हो जाएगा, सो 2 × 16, तो 16 मीटर। तो इस 4q वाले से कितना दूर आया 16, है ना, और ये कितनी दूरी पे है 16 माइनस, ये -1 पे है ना, सो ये 1 और ऐड हो जाएगा, तो ओरिजिन से इस से भी निकालेंगे तो वो 17 मीटर आएगा। तो ओरिजिन से दोनों केसेस में 17 मीटर आ रहा है। इट्स वेरी सिंपल। Okay, so let me end this lecture here, and till then please revise all the 4-5 lectures which we have posted. Okay, and please comment and like, and please tell us by commenting over there कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, किस में कोई डाउट है या किस टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं। प्लीज़ टेल अस, वी विल बी पोस्टिंग द सेम वीडियो। थैंक यू वेरी मच, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, मीट यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।